सर्पनी सर्पनी क्या कहूँ पाई, सर्पनी सर्पनी क्या कहूँ पाई। सर्पनी 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 क्या कहूँ पाई, जिन साच पछानिया, जिन साच पछानिया, जिन साच पछानिया, तिन सर्पनी खाई। जिन साच पछानिया, तिन सर्पनी खाई। सर्पनी सर्पनी क्या कहूँ पाई, सर्पनी जिन साच पछानिया, तिन सर्प खाई। जिन साच पछानिया, तिन सर्प खाई। जिन साच पछानिया, तिन सर्पनी मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी। मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी, जिन त्रिभुवन डसियले गुर प्रसाद दीठी। जिन त्रिभुवन डसियले गुर प्रसाद दीठी, गुर प्रसाद दीठी। सर्पनी सर्पनी क्या कहूँ पाहा, सर्पनी। प्यारी साध संगत जी, जो शब्द असी गायन किया है गुरु ग्रंथ साहिब के 480-81 भाव 481 पेज ते ये शब्द सुशोभित है। इसका सिरलेख है आसा श्री कबीर जी के। अगे लिखा है एक कबीर जी का आसा राग विच शब्द है, पर कुछ होर भी शब्द हैं। वो जिहड़े शब्द हैं इस प्रकरण इस टॉपिक हेठां वो पंचपदे दे 9 शब्द हैं। पंचपदे 9, एक तुके 4, एक तुके दे 4 शब्द हैं। इस शब्द का सिरलेख है ते जदों असी इस शब्द के आखिर ते देखांगे तो उत्थे लिखा है 5, ਇਹਦਾ मतलब 5 पदे का, पर अगे लिखा 6, ਇਹਦਾ मतलब उस लड़ी विच 6वां शब्द है। 5 पदे के जिहड़े शब्द हैं उन्हां विच 6वां शब्द है। अदरवाइज कबीर साहब के इत्थे तक 19 शब्द आ चुके हैं आसा राग विच। ये बाणी की बनतर का ढंग है, इसके सिरलेख का ढंग।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਵਿਸਮਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ। ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਹਿਲੇ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਂਗਲਸ, ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਝ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੰਝ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਰਅਸਲ ਇੰਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਰਅਸਲ ਇੰਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਰਅਸਲ ਇੰਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਰਅਸਲ ਇੰਝ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੰਝ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਭੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਛੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੱਭਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਰਾਗ ਹੇਠਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਉਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ, ਬੈਰਾੜੀ, ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਹਿਲੇ ਨੌਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟੋਟਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਢੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ
आंखें बंद करके किसी बिंदु पे ध्यान लगा के कंसंट्रेशन बनाने के लिए कोई ध्यान नहीं करना पड़ता, ऑटोमैटिकली कंसंट्रेशन बन गई। एक बीमारी की गल की जा रही है, वो बारे इतने सारे सुझाण मत देण वालियां दी बाणी उत्थे लगी हुई है, आपे ही स्लॉट बन गई, एक पाइपलाइन बन गई। इस बीमारी के बारे में बात की जा रही है। आपे चारों पासों दिमाग सारी दुनिया तो तोड़ के एक लाइन ते आ गया ना। काश जे इंज असी समझिए बाणी नूं, कितना ग्रेट ढंग है बाणी की बनतर का। ये ढंग अखंड पाठां नाल समझ नहीं आता। ये ढंग जिस तरह मर्जी पाठ कर लो, इस तरीके नाल ते समझ नहीं आता। 48 घंटे का खिच धरू के करन वाले नाल ते वैसे ही नहीं समझ आता, क्योंकि वेल नहीं है। घंटे विच 30 सफ़े करने हैं। ते जिन्हां ने घंटे 30 सफ़े करने ने वो तो करके चले गए। घर वालियां नूं ये है कि साडे रिश्तेदार आ जाएंगे, हलवाइयां का समान तैयार है, इस करके जल्दी भोग पाओ। उन्होंने अपने काम की पई होंदी है, वो भी नहीं समझते। समझण की वेल ही नहीं है ना, क्योंकि सानू किसी ने भुलेखा पा दिता है, किसी नूं पैसे दे के तुसी पूरा करा लो, फलानी जगह करा लो पुत्र मिलेगा, फलानी जगह करा लो धी मिलेगी, फलानी जगह करा लो औलाद मिलेगी, फलानी जगह करा लो सीमेंट मिलेगा, फलानी जगह करा लो प्रॉपर्टी मिलेगी, फलानी जगह करा लो पेंट मिलेगी, फलानी जगह करा लो कमीज़ मिलेगी। यही सानू सिखाया ना। इस करके असीं सुखना सुखते रहते हैं। जे घर पुत्र हो गया फलानी जगह जाके इन्हें पढ़ रखावांगी, समझांगी बिल्कुल नहीं। फिर इस तो इलावा असी सिर्फ इनू गायन किया। गायन करन वेले उहदे सिरलेख का ध्यान असी नहीं करते, उहदे राव नूं समझण दा साडे कोल वक़्त नहीं है। क्यों? राग विच गाना, बंदिश विच गाना, तबला ठीक होना चाहिए, गला ठीक होना चाहिए, सुरां ठीक होनी चाहिए। संगतां वाह वाह कर देन, बड़ा सुंदर राग में गाया। मैं गाण वाले नूं भी हौमै चढ़ गई, सुनन वाले भी झूम झूम के। ये बारे गुरु साहब की कहते हैं, जो कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे तिनका उतर जाएगा झूठ कुमार। एक जगह गुरु साहब कहते हैं, अंदरों अन्ना बाहरों अन्ना, कूड़ी कूड़ी गावे। सानू कह रहे हैं, किसी अंधे इंसान को नहीं कह रहे हैं, सानू कह रहे हैं तू अंदरों तेनू देखण दी अख नहीं, बाहरों तेनू देखण दी अख नहीं, तेनू ना अपना अंदर समझ आता है, ना बाहरली दुनिया समझ आती, ना लोक समझ आता है, ना तेनू परलोक समझ आता है, तेनू ना आगे समझ आता है, ना तेनू पाछे समझ आता है, ना तेनू ऐथे समझ आता है, ना तेनू ओथे समझ आता है, कुछ भी तो तेनू समझ नहीं आता। इनू अन्ना कहते हैं। जिन्हों सच नज़र ना आए उन्होंने अन्ना कहते हैं, जो सच सुने ना उन्होंने बोला कहते हैं, उन्होंने मायाधारी अतन्ना बोला कहते हैं। एक करोड़ापति वाले पैसे वाले नूं मायाधारी नहीं कहते हैं। कोई भावें एक तेला पल्ले ना होवे, लेकिन जे वो सच नहीं सुनता, सच नहीं देखता, गुरु साहब उन्होंने मायाधारी अतन्ना बोला कहते हैं। खैर असी या गाया या पाठ कीते या तीजा काम शुरू किया, यहाँ आराम से बैठ के पाठ करते हैं या आराम से बैठ के कीर्तन करते हैं। आओ अब सड़क पे चलते हुए करेंगे, समझेंगे फिर भी नहीं। कितने ग्रेट हैं हम। चलते हुए गाएंगे। अब असी कदे भी बाणी दी बनतर नूं समझिया ही नहीं। कदों समझांगे? समझण वेले ये तो नहीं ना मैं कह रहा पाठ ना करया करिए, ये तो नहीं कह रहा ना कि नितनेम ना करया करिए, ये तो नहीं कह रहा ना कि कीर्तन ना करया करिए। पर जिन्हें नहीं समझना होंदा ना, वो बाद विच कहते हैं वो कह गया पाठ नहीं करना चाहिए, वो कहता कीर्तन नहीं करना चाहिए, वो देखो जी ये कहते हैं। भाव अर्थ अपने कढ़ सकते हो, हक जो तुहाडे कोल है। असी तो गलती ये कर बैठे हाँ कि अमरीका तो अपने घरों उठ के बाणी पढ़ के तुहाडे नाल सांझ करन आ गया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਔਗੁਣ ਕੱਢੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਲੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭੋਗੇ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੋਟ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਨਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलो। जरा आराम से इसको रगड़ो, बिलोवो, ताकि इसमें से मक्खन निकल आए, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। एवं अपना समा लांदे ही ना रह जाइए, बाणी नूं खोजिया करिए। अच्छा, जे असी बाणी नहीं बनतर खोजते तो होंदा की है भुपिंदर सिंह जी? जे ना खोजिए तो की हो जाएगा? हाँ, जे ना खोजिए तो चोटी दे विद्वान अते रागी इत्थे बैठ के गा के चले जाएंगे और कहेंगे, कबीर का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, उसकी पत्नी बोलती है करवट दे मुँह को काहे को मारे, और फिर पूरी भगत माल दी पता नहीं कित्थों लैके कहानी सानू सुना जाएंगे। ए नुकसान होया क्योंकि असी बाणी खोजी नहीं। कोई पूछे, जब भी हम सुनते हैं, हमने सुना है कि पहले गुरु से पाँचवें गुरु अते नौवें गुरु की बानी है गुरु ग्रंथ साहिब में, और कुछ भक्तों की बानी है। सत्ते बलवंड जी की वार अते पटा की सोई है, यही सुनया। कदे भी नहीं सुनया कि कबीर की मम्मी या कबीर की पत्नी क्या बोली। उनकी भी बानी है क्या गुरु ग्रंथ साहिब? नहीं। फिर असी किवें मान लेंदे कि ये कबीर की माँ बोल रही है, जब लग तागा बाँव बेई तब लग विसरे राम स्नेही, ते मेरा पुत्र बिगड़ गया। देखो जी, साड़ी पड़ोसन सुनो दरानी, सुनो जिठानी, अचरज एक भयो, हमरे कुल कौन एक राम के हो। देखो हमारे तो यहाँ बेटा बिगड़ गया, ये राम राम बोलता रहता है। दरानी जिठानी को बुला के उसकी माँ बोल रही है। अच्छा, उसकी मम्मी की बानी है क्या गुरु ग्रंथ साहिब में? नहीं। नहीं तो ये कहानी क्यों सुनाते हो गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में? फिर पूरे गुरु ग्रंथ साहिब किधरे नहीं किया केड़ा खास शब्द पढ़ो तब पुत्र मिलता है, पर असी एक डिसाइड कर दिता, एक ब्रांड नेम बना दिता, पुत्र चाहिए, बर्थडे है, मुंडे का बर्थडे है, पोता माता की असीस। ये अर्थ ही नहीं है, ना है बर्थडे वास्ते है ना पुत्रा वास्ते है। किस तरह असी हाईवे तो दूर जाई जा रहा, सतगुर दे गाड़ी राह तो दूर जाई जा रहा, सानू बाणी दी बनतर समझनी चाहिए है। अच्छा जी, समझांगे तो की होएगा? समझांगे तो एक और कुंडी खुलेगी। अज दे शब्द के मुताबिक कुंडियां ते नेका खुलदियां। को नानक गुर भरम काटिया, सतगुर दुनिया भर दे सारे भरम कट दिंदा है। करोड़ां भरम कह लो ना तां भी घट होएगा, सारे भरम कट दिंदा। उन्हां चों अज एक भरम जिहड़ा बड़ा वड्डा भरम सारी दुनिया बोलती है, माया। हाथ मत लगाना, पत्नी माया, मकान माया, सोना माया, पैसे नोट डॉलर रुपये माया, बच्चों के साथ मोह प्यार माया, ये सब माया झूठ है, एक दिन यहाँ से छोड़ के जाना होगा। साध संगत में उस टोन ही जान के बोल रहे हैं ताकि सानू रियलाइज कराया जाए, तुम सब माया के साथ चंबड़े हुए हो, पापी हो। गिल्टी फील कराया जाएगा, है ना। जिन्हों ने क्या माया 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 है, झूठ है झूठ है झूठ है, गृहस्थी झूठ है, वोटी झूठ है, माँ झूठ है, बच्चे झूठ हैं, उन्होंने पता की किया, उन्हें विआह ही नहीं कराया। किन्ने कायर ते हो डरपोक। उन्हें क्या पैसे कमाना झूठ है, मैं कमाया ही नहीं करूँगा। आपे लोकी मेरे गोडे घुट के मकान बना के मर्सिडीज कार रख जाएंगे,
मैं नहीं कमाऊंगा। हम माया को हाथ नहीं लगाते। क्यों? लोग आप पे जो माया से मिलता है वो दे जाते हैं। लगाने से जो खर्च के लाना पड़ेगा लोग की आप पे दे जाते हैं, माया को हाथ लगाना ही नहीं पड़ता है ना। पर जे आस्ता आस्ता मैं अमेरिका एक बंदे नूं सुनिया, वो कहता मैनू इन्ने मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिले कि करंसी डॉलर नोट के बदले एक कार्ड बना दो। अज तक तो असी क्रैडिट कार्ड सुनिया ना, हुण एक कार्ड बनता पाया। बस वो कार्ड किसी के हथ जाए कुछ नहीं चोरी होता। मेरा कार्ड बनेगा, उत्ते कख नहीं लिखा होया, सिर्फ एक मशीन वो बनाएगा, वो मशीन पढ़ लिया करेगी भुपिंदर सिंह के अकाउंट में किन्ने पैसे हैं, गल खत्म। चोरी हो ही नहीं सकता। कोई जेब कतरा कार्ड लै जाए कुछ नहीं वो चो कट सकता, सिर्फ मैं ही वो चो कढ़ा। जिस मशीन चो कढ़ावांगा उत्थे जिहड़े मैं पैसवर्ड्स या जो कुछ भी वो टैक्नीक वरतनगे आपे प्लस माइनस हो जाया करेगा। फिर तो सारी दुनिया बड़ी ब्रह्म ज्ञानी हो गई, बड़ी धर्म तू पहुँच गई, क्योंकि नोटा नू हाथ लाया ही नहीं, सिर्फ एक प्लास्टिक के कार्ड को हाथ लगाया। ये कागज है, इसको हाथ लगा भी लिया तो क्या हो जाएगा। ये जो आपके यहाँ कोयले की खान है, इसमें से मेटल्स भी निकलते हैं। मेटल है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, पित्तल है, कॉपर है, उसको अगर हाथ लगा भी लिया तो क्या हुआ, वो तो एक ज़मीन में से निकला हुआ है। इसे भगवान जी रूठ जाते हैं हाथ लगाने से। मैं जान जान के छोटे 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 एग्जाम्पल बनाई जा रहे हैं जिन्होंने सारिਆਂ ਦਾ नाम माया रखा होया। फिर सानू क्या गया 4 लावां करा के तू गृहस्थी जीवन जी, जंगल विच कल्ला ना जा। जे गृहस्थी जीवन जीना है वो असी 4 लावां गा के अपना आनंद कारज करा के गृहस्थी जीवन जीते हैं। आज सारी दुनिया गृहस्थी जीवन नूं प्रवान करती पई है। गुरु साहब गृहस्थी जीवन सिखाते हैं, अते गृहस्थी जीवन जींदे होया जे सानू कोई कहे वोटी झूठ है, माया है, माँ प्यो झूठ ने माया है, बच्चों नाल प्यार करना माया है, मोह माया है, तो असी ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। असी सोचते हैं इन्हों छोड़ मैं सकता नहीं, इन्हां विच मेरा मोह प्यार है। अपने आप नूं बई मैं पापी हाँ, मैं माया नाल जुड़िया होया, ये फील कर करके ना फिर असी सोचते हैं मैं किस तरह छुटा। फिर वो कहते हैं तू इन्हां तो छुट नहीं सकता, तेरा अगले जन्म वास्ते ना असी स्वर्ग विच प्लॉट लिया होया, वो असी वो ठेकेदार हाँ, प्रॉपर्टी डीलर हाँ, अगे दे स्पेस दे, परलोक दे, स्वर्ग दे, हैवन दे, जन्नत दे, वो असी प्लॉट तैनू लै देंगे। तू पता की कर, फलाना 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 कर्मकांड कर, मेरे गोडे कुट जा, आपे तेरे सारे पाप दूर हो जाएंगे। इनू सारी दुनिया ने नाम माया रखा है। गुरु साहब कहते ने माया कोई भी चीज़ नहीं है। जी विचारांगे तो पता लगेगा। हमने तो पुराने धर्मों की कहानियाँ जो चलती आ रही हज़ारों सालों से, उसके पैटर्न पे ही गुरु ग्रंथ साहिब के जूरी में बैठ के व्याख्या करनी शुरू कर दी, और लोगों ने भी मान लिया हाँ माया से जुड़े हुए हैं। कहने वाले ने इतों ही कह दिता माया ना जुड़े हो, झूठ ना जुड़े हो, पापी हो। गुरु साहब कहते ने इत्थे कुछ भी माया नहीं है। इस गल नूं समझण वास्ते असी सब तो पहला तो डिटेल विच एक ओंकार तो गुरप्रसाद नूं समझिया कि ये रब जी के गुण हैं, पर रब जी के गुणों की वडियाइयां करके उत्थे तक छोड़ देने वास्ते नहीं हैं। रब्बी गुणों नूं इन्हां नूं मैं जीना मेरे वास्ते कह रहे हैं। उस पुस्तक का नाम रखा रब्बी गुण। फिर दूसरी पुस्तक आई साड़ी होर 4 साल बाद, रब्बी गुण के 8 सालों तो बाद फिर 4 साल होर लगाए, पुस्तक आई आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। उसका नाम असी रखा रब्बी रज़ा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समझिया कि रब जी का नियम, रब जी का सुनिया, रब जी का फलसफा, रब जी का इस सृष्टि में कुदरत
विच लॉज ऑफ नेचर बलिहारी कुदरत वसिया, सब कुछ सच है, शुरू तो सच है, हुण भी सच है, हमेशा सच रहेगा। लेकिन ये एक होर पॉसिबिलिटी लभण की कोशिश की कि आज सच जुगात सच है भी सच, ये तो गल वखरी है, अगे सच्चा रहेगा। पर कह रहे ने पॉसिबिलिटी है नानक होसी भी सच, जे तू ये जुड़ जाए, तू इनू समझ लवें, तू भी होसी भी सच मीनस तू भी सच्चा हो सकता है, बशर्ते कि ये सही ढंग नाल जुड़। इत्थों ही गल समझ आई, वाह गुरु पातशाह तुसी कहते हो आप सत किया सब सत। यस भगवान जी, आपने सब कुछ बनाया और सब कुछ सच्चा है, आप सच्चे हो और सब कुछ सच्चा है। जेड़ा बंदा झूठा होएगा वो झूठी चीज़ बनाएगा, जेड़ा बंदा सच्चा होएगा वो सच्ची चीज़ बनाएगा। असी रब नूं सच्चा कह रहे हैं और रब की बनाई हुई सृष्टि नूं झूठ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सानू किसी ने कह दिता जग रचना सब झूठ है। असी कदे नहीं विचारा कि जग रचना केड़ी वाली, ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि झूठ है तो बनाने वाला तो झूठा हो गया। हम तो रोज सुबह पढ़ते हैं आज सच जुगात सच, हम तो रोज पढ़ते हैं बाणी में बलिहारी कुदरत वसिया। हाँ असी तो रोज सुखमनी साहब पढ़ते हैं, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत्त। भगवान जी आप सच्चे हो तो तुसी ये सारी सृष्टि बनाई है। कितना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिता। बाणी कहती पी है रब सच्चा है अते रब ने बनाई सृष्टि सच्ची है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। कदे सोचा सी जे सच्चे की कोठड़ी है, सच्चे का विश्वास है, सच्चे ने बनाई है, केड़ा बंदा इत्थे बह के कह जाता है सारी सृष्टि झूठ है? क्यों कह जाता? हु गिव द अथॉरिटी टू से सच नो झूठ? पर एक गल होर है, बाणी विच आया जग रचना सब झूठ है, फिर साडा फर्ज बनता है कि मैं लब्बां जग रचना सब झूठ केड़े वाली है। जदों विचारांगे तो पता लगेगा मेरे मन की बनाई हुई एक रचना है, उन्होंने जग रचना कहते हैं, ए सृष्टि नूं नहीं कहते, मेरे शरीर नूं नहीं कहते, मेरे माँ प्यो भैन भरा वोटी बच्चियां नूं नहीं कहते, मेरी मन दे ख्यालां ख्याली पलाव दी हवाई महल बने हुई गल्लां दे विकारी कामी तामसिक ख्यालां दे जिहड़े बनाई हुई एक रचना मैं बनाई हुई है ना अपनी, वो झूठ है। जिन्हें बनाई है ना झूठी रचना, उसनों कह रहे ने ओए मेरे मन जान लियो रे मीत, तुमने जो अपनी रचना बनाई है ना ये झूठ है। सच्चे नाल जुड़, तू सच्चा हो सकता है, सच्चे दी सृष्टि सच्ची है।